Hello students. Today's topic is credit creation by commercial bank. In our last lecture we studied about commercial bank, their meaning and functions. Commercial bank, as name suggests, that the commercial bank is set up for the profit generation. When any commercial institution is set up for profit generation, how commercial bank will get profit? First of all, we will listen about money supply in India. There are three sources of money supply in India. First is the main source, the central bank, which is the central authority of note issuing. Who is going to issue note if required? It is issued by the RBI, Reserve Bank of India. And the central government which issues coins. Coins issue करने का right किसके पास है? Central government के पास. And the commercial bank who create money on the basis of their cash reserves. Now we have studied three money suppliers. Who are these three suppliers? First is RBI, who is having the authority of note issuing, the central government which issues coins, and the commercial banks which create money on the basis of their cash reserve. Now for the commercial bank, two main points we have to note it down. Commercial bank do not have the authority of issuing note or coin. This specific authority is with RBI or government. What is the second thing? Cash reserve of the commercial banks are not treated as a component of money supply. Cash reserves means which are being kept aside. Cash held by the suppliers of money. कैश सप्लायर्स कौन है? आरबीआई, गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक. इनके पास जो भी स्टॉक रहता है दैट इज नॉट ट्रीटेड एज कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई. जो हमने कैश रिजर्व रख दिया, सेंट्रल बैंक ने जितना कैश रिजर्व, यानी रिजर्व मतलब एक साइड रख दिया, वो हम उसे मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं कर सकते. अब सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी थ्रू सर्कुलेशन ऑफ करेंसी. करेंसी को सर्कुलेट भी सेंट्रल बैंक करता है और इशू भी करता है अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग. इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ करेंसी फॉर मीटिंग द ट्रांजैक्शंस नीड ऑफ एन इकोनॉमी and facilitating various economic activities such as production, distribution and consumption. Nowadays you have heard in the news that RBI have released fund for many of the sectors of economy to boost them, to stimulate them for the production, distribution and consumption. Because this is the time of emergency. No other source is working. However, for this purpose, the central bank needs to depend upon the reserves of commercial bank. Reserve of commercial bank, how they are kept with the central bank. Commercial banks are forced to keep a percentage of their deposits with the central bank. This is a compulsion. This is a legal compulsion that each and every commercial bank has to keep some deposits with central bank, and the rate of deposits is decided by central bank. These reserve of commercial bank are the secondary source of money supply. First source क्या हो गया कि नोट छापने की अथॉरिटी है उनके पास, और दूसरा क्या है, जो कमर्शियल बैंक ने अपने रिजर्व्स रखे हैं उसे भी सेंट्रल बैंक यूज कर सकता है. अब जो मेन पर्पस है हमारा, जिस टॉपिक को मेन स्टडी कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए कमर्शियल बैंक, वो क्या है? इज द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. अब कमर्शियल बैंक क्या है? नोट छाप तो नहीं सकते, करेंसी इशू करने का कोई राइट नहीं है, बट फॉर द प्रॉफिट सेक वो अपनी इस थोड़ी सी करेंसी को कितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल लर्न अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. व्हाट इज मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन? मनी सप्लाइड बाय कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड क्रेडिट मनी. जो भी मनी वो प्रोवाइड करते हैं वो क्रेडिट मनी है. वो आती कैसे उनके पास? कमर्शियल बैंक्स क्रिएट्स क्रेडिट बाय एडवांसिंग लोन एंड परचेजिंग सिक्योरिटीज. ये एडवांस देते हैं, लोन देते हैं हमें, या फिर हमसे सिक्योरिटीज परचेज करते हैं. दे लैंड मनी टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस आउट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक. मैंने कहा ना, मनी आती कहाँ से है? मनी आती है फ्रॉम पब्लिक. जो डिपॉजिट पब्लिक ने एक्सेप्ट किए उसी से इनके पास मनी आती है. और ये किसको प्रोवाइड करते हैं? इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को.
for the consumption purpose as well as for investment. We have learn about this, the functions of commercial bank. However, commercial bank cannot use the entire amount of public deposit for lending purpose. अब जितना अमाउंट उनके पास आता है कमर्शियल बैंक के पास, पब्लिक जितना डिपॉजिट करती है, अगर वो सारा का सारा उधार दे दे, लैंड कर दे, क्रेडिट क्रिएट कर दे उससे, तो जब लोग मांगेंगे वापस तो बैंक फेल हो जाएंगे. तो बैंक के पास पैसे नहीं, अगर हमारा पैसा बैंक के पास जमा है और हम बैंक से निकलवाने जाएं डिमांड डिपॉजिट को और हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? हम अपने तो पैसे के लिए बोलेंगे ही और साथ में जिनके अकाउंट्स उस बैंक में है उनको भी कहेंगे कि हमें तो पैसा मिला नहीं. तो इससे क्या होगा? बैंक फेल हो जाएगा. बैंक फेल कैसे होगा? सब लोग एक ही टाइम पे पैसे मांगने आ जाएं तो बैंक की रेपुटेशन खत्म हो जाएगी. अभी आजकल देखा ना आपने, येस बैंक के लिए आपने सुना होगा, आफ्टर कीपिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिजर्व्स. अब हमें क्या है, थोड़ा सा रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है. किसके पास? एक तो आरबीआई के पास अपने पास रखना है, आरबीआई के पास रखना है और कुछ अमाउंट अपने पास रखना है ताकि हम कैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिपॉजिटर्स की पूरी कर सकें. हम कौन? एज अ कमर्शियल बैंक. आई एम टॉकिंग अबाउट कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक अपने पास कुछ अमाउंट रखते हैं और कुछ अमाउंट एज ए कंपल्शन रिजर्व बैंक के पास रखते हैं. किस लिए रखते हैं? फॉर सर्विंग द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिटर. आफ्टर कीपिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिजर्व, अब हमने एक अमाउंट रख लिया सरप्लस कि हम ये अमाउंट अपने पास रख लेते हैं और बाकी जो है वो किस लिए यूज करते हैं? कमर्शियल बैंक कैन लेंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट. बाकी जो बचा हुआ पब्लिक डिपॉजिट है उसे हम क्या करते हैं? उधार देने में यूज करते हैं. प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. अब जो ये प्रोसेस है, दिस मस्ट बी स्टडीड केयरफुली. अब आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल. जो लोगों से वो रिसीव करता है, दैट इज नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट. दैट आर एक्चुअल डिपॉजिट्स. यही जो अमाउंट है यही बैंक के पास आया और बैंक इसी को ही सर्कुलेट कराएगा. इसको सर्कुलेट करा के वो कितने टाइम मल्टीप्लाई कर देगा, यू विल सी नाउ. Let us assume that all banks in the economy receive cash deposits of rupees 10,000. For the calculation purpose, I have taken the example of 10,000. ठीक है, जितना भी बैंकिंग सिस्टम है सबके पास टोटल मिला के रुपीज 10,000 कैश आ गया. These are the demand deposit of the people. We are talking about demand deposit. Demand deposit वो डिपॉजिट होते हैं जिनके अगेंस्ट चेक विड्रॉ कर सकते हो, चेक लिख सकते हो, जिसे हम किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेक, विद द हेल्प ऑफ एटीएम, विद द हेल्प ऑफ going to bank, and with the help of this amount we can make any of type of shopping. Okay, so this is known as demand deposit. These deposits are a liability of the bank. हम जो भी पैसा बैंक में डिपॉजिट कराते हैं वो बैंक की लाइबिलिटी बन जाती है. दैट वेन एवर वी रिक्वायर्ड आवर मनी बैक, तो बैंक को वो लौटाना पड़ता है. बैंक लेंड्स मनी मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व्स. अब जितना कैश रिजर्व, हम सारा का सारा पैसा अपने पास रख ले तो रिस्क पेमेंट कैसे करेंगे? अपने स्टाफ को अर्निंग कैसे करेंगे? सारा नहीं रख सकते. और सारा का सारा उधार नहीं देंगे क्योंकि कोई डिमांड डिपॉजिट के जरिए पैसे मांगेगा तो हम उसे पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे. तो लेकिन बहुत सारा कुछ कैश रिजर्व रखने के बाद बाकी पैसा जो है हम उधार दे देते हैं. मनी इज लेंड बाय द कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश. जब कमर्शियल बैंक जब उधार देते हैं तो किस कैश फॉर्म में नहीं देते. वो क्या करते हैं, हम जो बोरो कर रहा है पर्सन, उसका एक अकाउंट खोल देते हैं. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट. ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस द बैंक रियलाइज दैट ऑल द डिपॉजिटर विल नेवर विड्रॉ देयर डिपॉजिट्स एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे डिपॉजिटर एक ही टाइम पे पहुंच जाए. लेट अस एज्यूम that by virtue of their experience the bank realize that if they hold just 10% of the demand deposit as cash reserve, कि अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे वो सोच सकते हैं कि कितने पैसे निकल सकते हैं. लेट कि 10% रख लें, वो सेफ है. 10% ऑफ द डिमांड डिपॉजिट, जितना भी टोटल डिमांड डिपॉजिट है उसका 10% अपने पास रख ले और बाकी क्या करें? बाकी हम क्या कर सकते हैं? लोन दे सकते हैं.
चलो हमने एग्जांपल लिया 10,000 का, तो 10,000 का 10% कितना हुआ 1,000, तो 1,000 हमने कैश रिजर्व रख लिया, बाकी बच गया 10,000 माइनस 1,000, दैट इज 9,000. 9,000 इज सफिशिएंट फॉर द other things that the person can bank can use it for lending purpose. बैंक नेवर लोन आउट मनी बाय वे ऑफ कैश. आई टोल्ड यू अर्लियर कि बैंक कभी भी कैश नहीं देते, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट्स ऑफ बोरोअर. बोरोअर के अकाउंट में वो क्रेडिट एंट्री करके अमाउंट प्रोवाइड कर देते हैं. दीज क्रेडिट एंट्रीज आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट्स. अब बैंक के पास एक तो प्राइमरी डिपॉजिट आया जो एक्चुअल में आया, दूसरा कैसा आया सेकेंडरी डिपॉजिट. इन दिस वे देयर कैश रिजर्व of rupees 10,000 continue to remain intact. उनके पैसे उनके पास ही हैं, बैंक के पास. बैंक ने कुछ नहीं दिया, बैंक ने 10,000 में से 1,000 एक साइड कर दिए, बाकी 9,000 जिसने लोन मांगा उसके अकाउंट में डाल दिए. तो वो 1,000 भी बैंक के पास पड़ा है, 9,000 भी बैंक के पास पड़ा है. बैंक ने तो कुछ नहीं दिया, उल्टा हुआ क्या, बैंक ने 9,000 का लोन दे दिया. कैसे दे दिया, डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में. कि हमने उसको क्या कर दिया, एक अकाउंट खोल दिया उसका कि तुम्हें हमने उधार देना है, हमने तुम्हारा अकाउंट खोल दिया है, तुम पैसे ले लो. अब बोरोअर कैन राइट चेक टू मेक पेमेंट whomsoever they want to. अब बोरोअर ने जिसको पैसे देने हैं, जिस चीज के लिए उसने लोन दिया है, वो उसे चेक दे देता है. ठीक है, तो चेक सर्कुलेट्स इन द इकोनॉमी एज मनी. अब मनी की जगह कौन सर्कुलेट हो रहा है, चेक सर्कुलेट हो रहा है. And rupees 9,000 comes back in the commercial bank as new deposit. अब हुआ क्या, सिर्फ एक नाम चेंज हुआ. जिस पर्सन ने चेक दिया उसके नाम से दूसरे पर्सन के नाम में पहुंच गया. सपोज ए ने लोन लिया 9,000 का, उसने बी को देने थे पैसे, उसने बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए. तो बैंक के पास ए का अकाउंट भी है, बैंक के पास बी का अकाउंट भी है. बैंक ने ए को लोन दिया 9,000 का, तो बैंक के पास 9,000 का लोन आ गया, बैंक ने लोन दिया हुआ है. अब वो 9,000 बैंक के पास थे और बैंक ने उसे क्या किया, अकाउंट से ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. पैसे बैंक के पास ही हैं. क्लियर. अब वो डिपॉजिट कितने हो गए, पहले 10,000 का डिपॉजिट, अब 9,000 का एक और डिपॉजिट. हालांकि बैंक के पास सिर्फ 10,000 ही है, लेकिन क्रिएट कितना हो गया 19,000. नाउ कीप अदर 10% ऑन फर्दर डिपॉजिट. अब फर्दर डिपॉजिट कितने का है हमारे पास, बी से 9,000 का. अब 9,000 में से हमने 10% रख लिया 900, बचे कितने. ठीक है, नाउ कैश रिजर्व पहले 1,000 का था, अब 900 हमने और ऐड कर लिया, तो 1,900 का कैश रिजर्व हो गया. दिस प्रोसेस कंटिन्यूस चलती जाएगी टिल ऑल एक्सेस रिजर्व गेट एग्जॉस्टेड, जब तक कि सारे रिजर्व जो है वो सारा एक्स्ट्रा अमाउंट जो है 0 तक कन्वर्ट नहीं हो जाता. अब देखो एक टेबल की फॉर्म में मैं समझा रही हूँ तुम्हें. क्रिएशन ऑफ मनी इन अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम. सपोज हमारे पास सिंगल बैंकिंग सिस्टम है, या सारे बैंक जो है एक ही बैंक के अंडर हैं, तो हमने एक ही सिस्टम मान लिया. तो फर्स्ट राउंड में हमारे पास पब्लिक से 10,000 आए, सारे टोटल मिला के सब लोगों ने जितना थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिपॉजिट किया, तो टोटल बन के 10,000 हो गए. दैट एग्जाम्पल इज टेकन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 10,000 ओनली. तो कैश रिजर्व कितना है, अब हमने कहा है CRR जो है वो 10% बनाना है, तो हमने रिजर्व कितना रख लिया, 10,000 में से 1,000 हमने रिजर्व रख लिया. तो हम लोन कितना दे सकते हैं, लोन 9,000. अब इसका दूसरा नाम क्या रखा है, डिराइव डिपॉजिट, यानी कि डिपॉजिट्स में से ड्राइव हो रहा है. क्लियर. तो ये 9,000 जो है नेक्स्ट टर्म का डिपॉजिट बन गया. अब ये 9,000 डिपॉजिट है, तो इसका 10% 900 हमें रखना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू कीप 10%. अब 10% रख लिया, तो आगे कितना दिया हमने, 9,000 में से 900 रख दिया, तो 8,100 हमने लोन दे दिया. अब 8,100 फिर डिपॉजिट बन गया हमारा, इसका 10% 810 रख लिया, बचा कितना 8,100 माइनस 810, तो 7,290. ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी जब तक कि लोन जो है डिराइव डिपॉजिट 0 नहीं हो जाते. अब एक्चुअली जब हम टोटल करेंगे तो इट विल बिकम 1 lakh. Total of deposit will become 1 lakh and total of cash reserve 10% of the deposits. तो डिपॉजिट 1 lakh है, तो उसका 10% यानी कि 10,000. और लोन कितना है 1 lakh का 90%,
क्योंकि 1 लाख में से 10,000 माइनस करोगे तो आ जाएगा 90,000। अब आप खुद से देखो कितना चेंज हुआ कि हमने 10,000 को 1 लाख में कन्वर्ट किया। बैंक की इनकम का सोर्स क्या है? यही है। बैंक क्या करता है? 10,000 को उसने 1 लाख में कन्वर्ट किया। विद द हेल्प ऑफ ओनली 10,000 इट हैज गिवन लोन ऑफ 90,000। देखा आपने कि कैसे प्रोसेस चली कि 10,000 में से 1,000 रखा, 9,000 उसने क्या किया? लोन दे दिया। वो लोन फिर क्या बन गया? डिपॉजिट बन गए। फिर डिपॉजिट का 10% रखा, फिर आगे। तो इस तरह करते करते ये हो गया कि 10,000 रुपए जो पब्लिक ने एक्चुअल डिपॉजिट किए थे उसका 90,000 उसने लोन में कन्वर्ट कर दिया। अब जो 10,000 जो ये इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट कम होती है जो हम डिपॉजिट पे देते हैं, और जो लोन पे चार्ज करते हैं दैट इज मच मोर हायर। तो ये प्रोसेस कब सक्सेसफुल होगी? ओनली व्हेन द बैंकिंग प्रोसेस इज गुड। अब फॉर्मूला फॉर द एस्टिमेशन जब मैंने कह दिया डायरेक्ट 1 लाख होगा, तो हाउ विल यू ट्रस्ट ऑन द थिंग कि ये 1 लाख कैसे हुआ? मैंने पूरा कैलकुलेट करके तो नहीं दिखाया। लास्ट टेबल देखो पिछले पेज पे, तो देखो 10,000, 9,000, 8,100 ऊपर डॉट डॉट करके मैंने कर दिया 1 लाख। तो हाउ विल यू ट्रस्ट? तो विद द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इक्वल्स टू 1/RR। RR मीन्स रिजर्व रिक्वायरमेंट। 1/RR इंटू कैश रिजर्व। 1/RR हमने यहाँ पे रिजर्व कितना लिया है? 10%। और हमारे डिपॉजिट्स कितने हैं? 10,000। तो कितना बन गया? 1 लाख। क्लियर? तो टोटल डिपॉजिट कितने हो गए? 1 लाख हो गए। टोटल कैश रिजर्व कितना हो गया हमारा? 1 लाख का 10% यानी कि 10,000। लोन और डेराइव डिपॉजिट कितने हो गए? टोटल डिपॉजिट माइनस कैश रिजर्व। तो 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दिया तो रुपीज 90,000 जो है वो हमारे पास लोन, या फिर हम कह सकते हैं इसको डेराइव डिपॉजिट। अब यहाँ पे हमने पढ़ा RR। RR मीन्स रिजर्व, रिक्वायर्ड रिजर्व। अब रिक्वायर्ड रिजर्व दो तरह के होते हैं, एक होता है CRR, एक होता है SLR। CRR कैश रिजर्व रेशियो refers to the legally required cash reserves of the commercial bank with RBI। मतलब जो RBI के पास कंपल्सरी लीगली एक रिजर्व एक कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है। दैट इज अ कंपल्शन कि अपने डिपॉजिट्स का, अपने टोटल डिपॉजिट्स का हर कमर्शियल बैंक को एक फिक्स परसेंटेज रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। क्लियर? और एक होता है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी यानी कि अपने पास भी उसे निश्चित रूप से लिक्विड फॉर्म में रखना है, क्योंकि हर बार कमर्शियल बैंक उसके पास तो नहीं जाएगा, RBI के पास तो नहीं जाएगा कि मेरा कस्टमर आया मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे देने। तो उसे अपने पास कुछ तो लिक्विड एसेट्स रखनी पड़ेंगी, लिक्विड फॉर्म में कुछ तो रखना ही पड़ेगा। तो लिक्विड फॉर्म में भी liquid assets, maybe gold, maybe cash, maybe any liquidity. So it refers to liquid assets that the commercial bank must hold. Must hold means अपने पास रखना है as a percentage of their total deposit. Like CRR, SLR is also determined by RBI. वो भी RBI बताता है कि कितने परसेंट रखना है, ये भी RBI बताता है कि आपको मिनिमम इतने परसेंट रखना है, उससे ज्यादा रख सकते हो, उससे कम नहीं रख सकते। And is the legal requirement to be fulfilled by the commercial bank. Now there are some limitations of credit creation. अब credit creation हमने कहा कि 10,000 को 1 लाख में कन्वर्ट कर दिया, कैसे किया? उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। अब मैंने कहा कि सिंगल बैंकिंग सिस्टम, बैंक से हमने बैंक ने डिमांड चेक बुक दे दी हमें, बोरोवर को उसने चेक बुक से पेमेंट कर दी, और वो पर्सन पैसे नहीं निकाले, वो भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, तो ही चलता रहेगा। मींस बैंकिंग सिस्टम पे जितना ट्रस्ट होगा, लोगों की बैंकिंग हैबिट्स जितनी डेवलप होंगी, उतना ही ज्यादा ये प्रोसेस करेगा। और जब बैंकिंग आदतें ही हमारी बिगड़ी हुई होंगी तो ये सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो लेट्स सी सम लिमिटेशंस। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग। डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग क्रेडिट क्रिएशन इज मोर। किस सिचुएशन में मोर होती है? जब डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इज मोर एंड वाइस वर्सा। जब बैंकिंग सिस्टम अच्छा डेवलप है तो ये क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, अगर अच्छा नहीं है तो नहीं होगा अच्छा, मीन्स उल्टा हो जाएगा। उल्टा कब होगा?
जैसे सपोज अपने विलेजेस की बात करें, तो विलेजेस में लोग क्या करते हैं, कैश रखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज बैंकिंग फैसिलिटीज आर नॉट सो अवेलेबल देयर, बैंक्स अवेलेबल नहीं होते, फिर उनके जो नेटवर्क है वो प्रॉपर नहीं होते. हैबिट्स ऑफ बैंकिंग, द कंट्री हुज पीपल यूज मोर बैंकिंग फैसिलिटीज, बैंक्स कैन क्रिएट मोर क्रेडिट. जिनके बैंक जो पीपल है वो ज्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज को यूज करते हैं. सपोज आप घर बैठे ही ऑनलाइन बैंकिंग करने में ज्यादा बिलीव करते हो, बैंक से पेमेंट करते हो, एटीएम से पेमेंट कर डायरेक्ट, ये जो ऑनलाइन पेमेंट्स है वो करते हो, तो उस टाइम में आपके क्या है, बैंकिंग हैबिट्स डेवलप है. देन यू कैन क्रिएट मोर क्रेडिट. सारा पैसा बैंक के पास रहेगा, बैंक उसे यूटिलाइज कर सकता है. लीकेज, इफ द अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक ने पैसा निकाल लिया, देन व्हाट हैपेंड, तो बैंक से हमने पैसा निकाला इन फॉर्म ऑफ कैश, तो बैंक के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो क्रेडिट क्रिएट कर ही नहीं पाएगा. जितना ज्यादा लीकेज होगा बैंक उतना ही कम जो क्रेडिट है वो क्रिएट कर पाएगा. फिर है इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट. बिजनेस जितना ज्यादा डेवलप होगा बैंक के पास उतना ही क्रेडिट क्रिएशन का फैसिलिटी आएगी. और अगर इंडस्ट्रीज और बिजनेस जो है कम डेवलप है तो वहां पर क्रेडिट क्रिएशन इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा. मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ बैंक, सेंट्रल बैंक. अब सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये भी इफेक्ट करती है क्रेडिट क्रिएशन को. बैंक चाहता है, सेंट्रल बैंक चाहता है तो मनी स्प्रेड करता है, जहां चाहता है वहां रोक लेता है. तो अगर फ्लेक्सिबल है, लिबरल है, तो क्रेडिट क्रिएट होता है ज्यादा, और अगर रिजिड है तो ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है. तो क्रेडिट क्रिएशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द banking facilities as well as banking habits of the people. The country whose people trust on banking system will create more credit. So thank you students.